Welcome back, students. We are starting the third chapter of chemistry class 10th, acids, bases and salts. Now what is this acid, bases and salts? Acids हम सब समझते हैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है. इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे और एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. There are in all 4 parts to this chapter. In the first part, we will study basic properties of acids, bases and salts. Then what are bases, what are their applications, what are their uses, acids के पढ़ने के बाद bases. फिर हम pH पढ़ेंगे, parts of hydrogen, pH of a solution, and then we will talk about salts and types of salts और कई सारी titration और काफ़ी अच्छा interesting chapter है ये. So let us begin our day, this lesson. To start with, let's begin with the definition of an acid. So notes, यही notes हैं, screenshots ही notes हैं आपके, सब कुछ लिखा हुआ है मैंने इस chapter में, जो मुझे dictate करवाना होता है वो सब कुछ लिखा है यहाँ पर. So the acid, the word acid has been derived from the Latin word acidus, which means sour. Sour मतलब खट्टा, खट्टा आम, अचार, खट्टा, vinegar, खट्टा. So all things that are खट्टा, गोलगप्पे, खट्टा पानी, that is an acid. And anything which is an acid like नींबू का खट्टा, इमली का खट्टा, ये सब खट्टा खट्टा जो होता है ना, ये सब जो है ये सब एसिड्स होते हैं. सो एसिड की फर्स्ट quality is that the acid has been derived from the word aciduous, right? So right now what we find is that acids are those compounds which contain one or more hydrogen atoms and which on dissolving in water give hydronium ions. Hydronium ion क्या होता है? H3O positive as the only positively charged ion in an aqueous solution, right? Okay, just take a screenshot of this page. Yeah, just take a screenshot of this page and I will, once I have to take this call, pause. Now if we put acid in water, what happens is आयनाइजेशन हो जाती है. एक H3O पॉजिटिव आयन बनता है और एक क्लोरीन नेगेटिव आयन बनता है. फिर अगर हम H2SO4 को वाटर में डाल दें तो वी गेट टू हाइड्रोनियम आयंस, एंड we get a sulfate ion, SO4 2 negative ion, right? So these are the ions that would be formed if we put an acid in water, right? ये जो ion है H3O positive, this is what is called as a hydronium ion. Now we can classify, now the second topic is classification of acids. How do we classify acids? So we can classify acids on the basis of कि वो source क्या है उनका. Is it an organic source? Organic मतलब does it come from a living source? Like for example, नींबू का खट्टा, इमली का खट्टा is a living source. तो इसको ऑर्गेनिक एसिड्स बोलेंगे. और कुछ एसिड्स हैं जो मिनरल से आते हैं, रॉक से आते हैं, सॉल्ट से आते हैं. सो दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स, राइट? लिविंग एंड नॉन लिविंग सोर्स. लिविंग सोर्स इज कॉल्ड अ ऑर्गेनिक एसिड, नॉन लिविंग सोर्स इज कॉल्ड अ इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन ए ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक का मतलब आई टोल्ड यू लिविंग. A living compound with acidic properties is called an organic acid. So it's a living compound जिसमें cells होंगे, plant cells or animal cells, some cells. Citric acid, for example, is the acid we get from lemon. Lactic acid we get from milk. जब कोई चींटी काटती है हमको
तो वो हमारे कुछ जो कटने का होता है उसमें एक एसिड होता है, इट्स कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। देन टमाटर के अंदर जो एसिड होता है, टमाटर का एसिड इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। यूरिन इज ऑल्सो एसिडिक एंड दैट इज कॉल्ड द यूरिक एसिड। है ना, कई लोग बोलते हैं मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है, दैट मीन्स किडनीज आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, तो यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो दैट these are all organic acids are all weak acids, they're not very strong acids, they are weak acids. For example, citric acid का chemical formula होता है C6H8O7, this is the chemical formula of citric acid. अगर हम citric acid को, नींबू को पानी में डालते हैं क्या बनेगा? आप बोलोगे सर नींबू पानी, नहीं, केमिस्ट्री में नींबू पानी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं citric acid plus water will form hydronium ions, H3O positive ions plus C6, एक H, यहाँ का एक H कहाँ गया? एक H हाइड्रोनियम आयन H3O है ना, तो एक H मिल गया फ्रॉम सिट्रिक एसिड टू वाटर, तो H3O पॉजिटिव एंड एक H कम हो गया, so C6H7O7 नेगेटिव। सो अगर कोई बोले citric acid is mixed with water, what do you get? Should not say नींबू पानी, है ना। और कोई बोले टारटैरिक एसिड, इमली का पानी को पानी में डाल दिया, डोंट से गोलगप्पे का पानी, हाँ, से हाइड्रोनियम आयन बनेगा, केमिस्ट्री में हाइड्रोनियम आयन बनता है। ऑलराइट, सो देन वी कम टू ऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर है सबको, समझ आ गया? मैंने नाम भी बताया आपको, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द होल पेज, राइट। तो नोट्स मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसी को देख के ही आपने नोट्स लिखने हैं अपने, राइट। नाउ इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक is a non-living acid, so the acids which are usually obtained from minerals, they are called as mineral acids or inorganic acids. For example, hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3, and जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर होता है, एसिडिक होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स भी, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द कोल्ड ड्रिंक्स, दैट एसिड इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड H2CO3. Now, right, so these acids, the mineral acids की quality ये है, these are all strong acids, and they are strong acids because they completely dissociate into hydronium ions in their aqueous solution. यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, जब मैंने सिट्रिक एसिड लिया था तो मैंने एरो क्या लिया है? डबल एरो। डबल एरो मतलब पूरी कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होती है, और सिट्रिक एसिड वाटर हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होता है, और रिवर्स भी होता है, बोथ वेज है एरोज, दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयन्स मिलकर वाटर भी बनाते हैं सिट्रिक एसिड। तो ये एक इक्विलिब्रियम होता है, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन द एसिड स्टेट एंड द प्रोडक्ट स्टेट एंड द रिएक्टेंट स्टेट। जबकि जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स बिकॉज दे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू हाइड्रोनियम आयन्स इन देयर एक्वस सोल्यूशन। सारा का सारा टूट जाएगा एसिड, हाइड्रोनियम आयन्स में बन जाएगा, सल्फेट आयन्स बन जाएंगे। तो H3O पॉजिटिव प्लस 2 दो बार बन रहा है, बैलेंस किया इक्वेशन को, एंड द नेट चार्ज ऑफ दिस इज +2, तो इधर का भी चार्ज उतना ही होना चाहिए, बिकॉज चार्जलेस चीज़ें जब टूटती हैं तो तब भी नेट चार्ज शुड बी 0 ओनली। तो सल्फेट आयन का चार्ज होता है 2- और H3O का होता है एक सिंगल प्लस, बिकॉज यहाँ पे 2 भी है, so this is +2 and this is -2, this is neutral. Now कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में मिक्स होती है तो बनता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, है ना। कोल्ड ड्रिंक जब पैक की जाती है तो उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हम पानी में डालते हैं, वो उसमें कुछ एसेंस भी होते हैं, उसमें फ्लेवर भी होता है, मिठास भी होती है, प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो कोल्ड ड्रिंक को अपना एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर आता है। अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए, कैसे निकालोगे? कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलो, ग्लास में डालो और पियो मत, उसको छोड़ दो। आना 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आओगे, सारी कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई होगी। अब आप उसको कोल्ड ड्रिंक को पीना, आप बोलो कि यक कितनी गंदी है ना, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज अब उसके अंदर एसिड रहा नहीं है। ये एसिड का H2CO3 ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गया। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस हैज़ बीन somebody is trying to join, okay, no problem. So here ये सारा का सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाएगी, पीछे पानी पानी बच जाएगा। ओके, सो दीज मिनरल एसिड्स डियर are stronger acids as compared to the organic acids which are less strong, right? तो क्या है, आवाज़ क्यों आ रही है मेरे को टिंग टिंग? तो if you want to take a complete picture of the entire page, then that is the picture. टुंग टुंग आता है जब मेरे को आता हूँ, कोई होता तो है नहीं वहाँ पे। कौन ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है? चले गए हैं, 17 रह गए हैं। अच्छा, कुछ लोग आए थे सिर्फ अटेंडेंस लगवाने के लिए। ओके, नाउ Sunaina Farooq, your screen is still visible. Click to cancel your presentation. No, resume your presentation. किसने मेरी प्रेजेंटेशन को रोकने की कोशिश की है? ठीक है, हो गया सबको? नाउ so we have studied acids. Acids are sour, खट्टे होते हैं, और वो उनके सोर्स के बेस पे हम इनको 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। फिर आ गई बात, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। सो हमारे कुछ बेसिस बनाए हैं हमने। ऑर्गेनिक एसिड्स दे हैव प्लांट ओरिजिन एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। सेकेंड पॉइंट ऑफ बेसिस इज डिसोसिएशन इन एक्वस सोल्यूशन। पानी में डाल दें एसिड को तो कितना डिसोसिएट होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, दे आर प्लांट ओरिजिन एसिड्स, दे आर वीक एसिड्स, सो दे आर not completely ionized in aqueous solution. That is, their solution contains both ions and undissociated acid molecules. They are weak acids. पूरा dissociate नहीं होते हैं, right? जबकि inorganic acids they completely ionize in their aqueous solution. अब 11th में जाओगे तो you will study about chemical equilibrium chapter, वहाँ पे आप पढ़ते हो coefficient of डिसोसिएशन अल्फ़ा, कितना परसेंटेज डिसोसिएट करते हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 1 होती है या 100% होती है, जबकि ऑर्गेनिक एसिड्स की कई वैल्यूज़ हो सकती हैं ना, 10%, 7%, 6%, 11%, 15%। तो ऐसा कुछ कुछ वैल्यूज़ होती हैं, और ये डबल साइडेड एरो होते हैं। दैट मीन्स इधर से उधर जाते हैं और उधर से इधर भी आवत हैं। दे आर वीक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, जबकि इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक्सेप्ट कौन कौन से? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? HCl is strong, H2SO4 is strong, HNO3 is strong, बट कार्बोनिक एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होता तो हम पीते नहीं उसको ना, तो हम जल जाते, एसिड से जल जाते हैं। तो लेकिन इतना भी वीक नहीं होता, कुछ तो नुकसान करता ही है ना, कुछ तो ऐसे टिंजी टिंजी फीलिंग आती है जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जल्दी से सडनली खोल कर पीते हैं, तो ऐसे हमारे टंग के ऊपर चुभता है, वो चुम 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 चुभता है। दैट चुभना इज़ बिकॉज ऑफ द एसिड कंटेंट इन दी कोल्ड ड्रिंक। और एसिड से हमारे को कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ऐसे लगता है एज इफ हमारे जो दांत हैं वो साफ़ हो गए हैं, ऐसा फीलिंग आती है, बिकॉज वो एसिड ने क्या किया है, वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट किया और हमारे टीथ के ऊपर से एक लेयर ऑफ कैल्शियम को निकाल के ले गया है। इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, कोल्ड ड्रिंक इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड जो टमाटर में होता है, टमाटर का खट्टा हम लोग डालते हैं, टमाटर डालते हैं सब्जी में, क्यों? बिकॉज हमको खट्टा करना होता है सब्जी का ना,
खट्टी खट्टी सब्जी बनानी होती है, ऑक्सैलिक एसिड। टारटैरिक एसिड, इमली का खट्टा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी, मीठे बेर। तो टारटैरिक एसिड सांभर में डालेंगे हम, राइट। गोलगप्पे का पानी बनाएंगे इसका, गर्ल्स को बहुत मन कर रहा होगा गोलगप्पे खाने का। एसिटिक एसिड जो है ये हमारे घर में मिलता है, इसको विनेगर बोलते हैं, सिरका। वो डाइल्यूट एसिटिक एसिड होता है। कोई आपके पास घर में विनेगर की बॉटल होगी, उसको पकड़ना, उठाना, पढ़ना जरा उसको, उस पर लिखा होगा विनेगर डाइल्यूट एसिटिक एसिड, ऐसा लिखा होगा उस पर। और फिर हमारे पास जो हमको फ्रूट से मिलता है, लेमन से मिलता है, दैट इज़ सिट्रिक एसिड, C6H8O7 सिट्रिक एसिड। एंड एग्जाम्पल्स ये सारे लिखे हैं मैंने, HCl, H2SO4, ये सारे एग्जाम्पल्स बेसिकली इस ग्रुप में आने थे यहाँ पर। तो HCl, H2SO4, HNO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, NaHSO4, नाम भी सीख रहे हो, देखो केमिकल फॉर्मूलाज भी सीख रहे हो आप। तो यहाँ पर मेरे गांव वालों एक फ़ोटो खींच लो इसकी, राइट, ले लिया फ़ोटो। डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स, सही है। तो ऑलराइट, 2/100। आगे बढ़ते हैं और हमारी कहानी में ट्विस्ट है, वो है ये। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रेंथ के बेस पे कैसे उनको हम क्लासिफाई करते हैं। अभी तक हमने एक क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स, या तो एसिड प्लांट से आया होगा या मिनरल से आया होगा, सो देयर विल बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। नाउ on the basis of strength, we classify them as a strong acid or a weak acid. So we know that acids ionize in aqueous solution to produce hydronium ions, H3O positive. So reaction देख रहे हैं हम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा। अभी मैंने बात की थी आपके साथ। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा इज गिवन एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग आयनाइजेशन टू द टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स इनटू 100%। कितने आयनाइज हुए डिवाइडेड बाय कितने टोटल थे। HCl में मान लो थे 100 और बन गए 20, तो 20/100 इंटू 100%, दैट विल बी 20%। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं, उनका अल्फा 100% होता है, सिंस टोटल आयनाइजेशन टेक्स प्लेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, acids are of two types, strong acids and weak acids. Strong acids which undergo complete ionization in an aqueous solution are known as strong acids. Example, hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो आप जब लिखोगे तो नाम भी लिखना इनके, HCl नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर्मूला होता है HCl, इसको कैसे पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। देन वीक एसिड्स क्या हैं, द एसिड्स विच अंडरगो पार्शियल और incomplete ionization in an aqueous solution, thereby producing low concentration of hydronium ions, are known as weak acids. Examples, हमने बोला पूरी डिसोसिएशन नहीं होती है, 10%, 7%, 15%, 20%, बस स्मॉल परसेंटेज 1%. So acids which undergo partial or incomplete ionization in an aqueous मतलब water solution, thereby producing low concentration of hydronium ions, are known as weak acids.
एसिटिक एसिड फॉर एग्जांपल इज़ अ वीक एसिड, है ना। हम प्याज को डुबोते हैं सिरके के अंदर, होटल में जाते हैं तो उन्होंने सिरके में प्याज को डुबोया होता है, फिर हम उसको, थोड़ा सा खट्टा हो जाता है तो सिरके में डुबो कर हम उसको खाते हैं तो टेस्टी भी अलग आता है। फिर ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मूलाज भी बता रहा हूँ मैं आपको। एसिटिक एसिड इज CH3COOH। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर, तो अगली बार आपने टमाटर खरीदने जाना है, आपने बोलना है आई एम गोइंग टू बाय COOH होल ट्वाइस। मतलब क्या लेने जा रहे हैं, बोला कू ट्वाइस टमाटर बोलने की जरूरत नहीं है, बोलो ऑक्सैलिक एसिड लेने जा रहा हूँ। और कोई बोले विने, हाँ राइट, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर का एसिड। और कोई बोले सिरका पकड़ाना, बोलना यू वांट एसिटिक एसिड, ओके। तो अगर कोई किसी को चींटी काट के बोलना ओहो द चींटी हैज़ गिवन यू फॉर्मिक एसिड, राइट, फॉर्मिक एसिड। और कोल्ड ड्रिंक कोई पी रहा हो तो बोलो यू आर हैविंग अ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3, है ना। आप बोल सकते हो लेट्स गो एंड हैव अ सिप ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक। ऑक्सैलिक एसिड कौन सा है, किसके अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड? टमाटो में। और इमली में कौन सा होता है? इमली का नाम लिख लो अपने पास रफ कॉपी में, टारटैरिक एसिड। उसका फॉर्मूला गूगल करना, ठीक है, गूगल करना टारटैरिक एसिड, ठीक है। मैंगो में कौन सा एसिड होता है वो भी ढूंढना। फिर दूध में होता है लैक्टिक एसिड, उसका फॉर्मूला भी ढूंढ लेना। ऑलराइट, तो कुछ होमवर्क भी दूंगा ना, नाम बता रहा हूँ मैं आपको, लिखते रहो। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ढूंढना जो दूध में होता है। मैंगो में, मैंगो भी थोड़े खट्टे होते हैं, मैंगो में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड, नींबू का एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ढूंढना ना, फॉर्मूला। ऑक्सैलिक एसिड का मैंने बता दिया, होल ट्वाइस। तो ओके, नाउ हियर फिर थर्ड है, वी सेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन। लैब में जब आप जाओगे तो अच्छा पहले वाले की आपने पिक्चर ले लो एक पूरे की, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या यही नोट्स हैं। मैंने बिल्कुल ऐसे नोट्स टाइप ही बनाया हुआ है, राइट। तो इसको ही लिखना है आपने, रोज़ का काम रोज़ भी करना है, राइट। देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन we can have an acid which is like a concentrated acid or a dilute acid, जिसमें पानी डाल दिया हो, थोड़ा डाइल्यूट कर दिया हो, वो डाइल्यूट एसिड होता है। जिसमें नहीं डाला है, concentrated है, तो that would be a concentrated acid, right? So here we say on the basis of their concentration, the concentration of an acid tells us about the amount of water present in the acid. They are classified as concentrated acid, H2SO4 लिखते कैसे हैं उसको, आगे ब्रैकेट्स में CONC लिखते हैं, concentrated, HCl concentrated। अगर डाइल्यूट हो तो आगे हम दिल लिखते हैं। दिल का ये मत सोचना कि ये कहीं H2SO4 का दिल है, दिल नहीं है, दिल का मतलब है डाइल्यूट है। So a dilute acid, a sample of an acid which contains large amounts of water than its own mass is known as a dilute acid, and this is how you write। कई reactions होते हैं जो dilute acid में ही होते हैं, concentrated में नहीं हो पाते हैं। कुछ reactions हैं जो concentrated से ही होते हैं, वो dilute से हो नहीं पाते हैं। So we'll have to see कि कहाँ पे कौन सा acid यूज़ करना है जब reactions की बात करेंगे। तो टेक लिया पिक्चर, टेक अ पिक, स्क्रीनशॉट 1 2 3 4। फिर हमने कहा एक और पिक ले लो, पहले पिक ले लो। ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी ना, एसिड्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन बेसिसिटी। थोड़ी देर में समझाता हूँ क्या होता है, मतलब एसिड में बेस कहाँ से आ गया। देखो बेस तो आएगा, बिकॉज बेबी को बेस पसंद है इसलिए बेस आएगा। क्या है, अच्छा जस्ट जोकिंग। नाउ द ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, मतलब एसिड क्या करता है, एसिड इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ बेस, उल्टा होता है। तो एसिड कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। लड़ाई करा दी जाए एसिड और बेस की,
तो एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने बेस को ख़त्म कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है, उससे पता चलता है कितने बेस को मार सकता है, कितना दम है इसमें। सो इसलिए उसको बोलते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब अपने दुश्मन। बेस जो है वो एसिड का दुश्मन होता है, इसी तरह से एसिड भी बेस का दुश्मन होता है। एक दूसरे के दुश्मन तू मेरा, वही वाला दुश्मन है। सो the basicity of an acid definition is like this: the basicity of an acid is defined as the number of hydronium ions, hydronium लिख दिया, वो आएगा, the number of hydronium ions that can be produced by the complete ionization of one molecule of an acid in an aqueous solution। मतलब अगर हम किसी एसिड को पानी में डिसॉल्व करें तो कितने हाइड्रोनियम आयंस पैदा करेगा, वो कितने हाइड्रोनियम आयंस पैदा करेगा। अगर एक पैदा करेगा तो वो मोनोबेसिक एसिड होगा। मोनोबेसिक, डायाबेसिक, ट्रायाबेसिक, इस तरह के एसिड्स होते हैं। लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। मोनोबेसिक एसिड क्या होता है? The acids which produce only one hydronium ion when one of its molecule dissolves in water is called a monobasic acid। मान लो हमने एक HCl का दाना पानी में डालते तो एक हाइड्रोनियम आयन पैदा होता और एक क्लोरीन आयन पैदा होता। One molecule of HCl produces one hydronium ion। और इस तरह के एसिड कौन से हैं? वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नाइट्रिक एसिड, CH3COH और HCOH एट्सेट्रा। तो CH3COH इज एसिटिक एसिड, राइट, इसका कॉमन नेम। इसको हम इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। ये HCOH इज द मीथेनॉइक एसिड, है ना, मीथेनॉइक एसिड, दिस इज इथेनॉइक एसिड। इनके बारे में मिथेनॉइक, इथेनॉइक एसिड, कार्बन कंपाउंड में हम ये सब नाम सीखते हैं। तो अगर नहीं आता है नाम आज तो कोई बात नहीं, आज तो सिर्फ देख लो। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये मोनोबेसिक एसिड्स के, राइट? तो मोनोबेसिक एसिड का करेक्टर क्या है? दैट दीज एसिड्स आयनाइज इन अ सिंगल स्टेप। भाई एक ही तो है, एक ही तो उन्होंने आयन बनाना है, हाइड्रोनियम आयन, तो एक ही बार में बन जाएगा, तोड़ तोड़ के थोड़ा बनेगा। So these acids ionize in a single step. Second property is that on reacting with a base, they produce a single salt or a normal salt। हाँ, मतलब देखो क्या हुआ। अगर मैं HCl को एक बेस में डाल दूँ, NaOH, NaOH is sodium hydroxide, it's a very strong base, excellent base। जिसमें OH होता है वो बेस होते हैं, जिसमें H होता है वो एसिड होते हैं। सो ऑन रिएक्टिंग विद अ बेस, दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ क्लासिफाइंग एसिड एंड अ बेस, नॉट द ओनली वे, बट 10th क्लास के लेवल में हम खुश हैं इसके साथ। HCl जिसमें H होता है वो एसिड होते हैं, जिसमें OH होता है वो बेस होते हैं। सो अब क्या होगा? H और OH मिलेगा तो H2O बना देगा, पानी, और Na और Cl मिलेगा तो NaCl। NaCl क्या होता है? नमक, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो घर में डालते हैं सब्जियों में। तो नमक प्लस पानी बन जाता है, नमकीन पानी, ब्रायन वाटर। HNO3 एक और एसिड ले रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस NaOH। एक तो वाटर बनना ही बनना है, H2O, और बनना है आपका सोडियम नाइट्रेट। ना ये जो सॉल्ट्स हैं, these are called single salts और normal salts, right? इस तरह के salts बनते हैं। so that is the picture ले लिया हुआ आपने, think है ना, ये वाला 1 2 3 4, alright। फिर दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन है that is called diabasic acid। diabasic, डाया का मतलब ही होता है दो। so those acids whose one molecule on complete ionization produces 2 hydronium ions। 2 हाइड्रोनियम आयंस पैदा हों जिसके वजह से उस एसिड को हम बोलते हैं डायाबेसिक एसिड। एग्जाम्पल,
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम एसिड को ही देखेंगे तो हमको साफ साफ नजर आएगा H2, इसमें 2 हाइड्रोजन है भाई लोगों, है ना, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है। अब क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, H2SO4 को पानी में डालेंगे तो ये 2 पानी के मॉलिक्यूल मांगेगा, है ना, ये मांगेगा 2 पानी के मॉलिक्यूल्स। क्यों? बिकॉज इसने क्या करना है, इसने ये वाले 2 हाइड्रोजन जो हैं इसके पास जो हैं उसको इसने यहाँ पे जोड़ना है, एक एक हाइड्रोजन और जोड़ना है, इसको बनाना है H3O पॉजिटिव और 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं उसने। हाइड्रोनियम आयंस कितने बनाने हैं? 2 हाइड्रोनियम आयंस। और सल्फेट आयंस एक बनेगा, SO4 एक है, SO4 2 नेगेटिव चार्ज, आप देख सकते हो चार्ज भी न्यूट्रल हो गया। इसका चार्ज कितना है? इसका चार्ज है 2+, इसका चार्ज कितना है? 2-, 2+ एंड 2-, 0 हो गया। पहले भी 0 थे, रिएक्ट किए थे तब भी 0 थे, अब भी 0 है। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो ये जो H2SO4 है, इट्स अ डायाबेसिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक में होता है, वो भी एक डायाबेसिक एसिड है। टमाटर, कू होल ट्वाइस, टोमेटो, है ना, टोमेटो जो है वो भी एक डायाबेसिक एसिड है। देन वी हैव एन एसिड कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 नहीं, H2SO3। तो यहाँ पे दिखाया मैंने H2SO4, ये 2 स्टेप में होता है ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो डायाबेसिक एसिड होते हैं दे फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, 2 तरह के सॉल्ट बनाते हैं। दैट इज, एक एसिड सॉल्ट बनाते हैं और एक नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं। आओ करके देखते हैं। सपोज हम किसी सेकंड प्रॉपर्टी कर रहे हैं डायाबेसिक एसिड की, कि एक सल्फ्यूरिक एसिड डायाबेसिक एसिड है, वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 प्लस H2O। ये जो सॉल्ट है इसको हम एसिड सॉल्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एसिड सॉल्ट? क्योंकि अभी इसके अंदर एक H बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है, अभी ये और हाइड्रोजन दे सकता है। इसमें एसिड भी है और सॉल्ट भी है, इसलिए इसका नाम होता है एसिड सॉल्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये वाला सॉल्ट जो है वो फिर से NaOH के साथ रिएक्ट करता है, एक हाइड्रोजन और बाहर खींचता है तो एक वाटर बन गया, H2O बन गया ना, एक H2O बन गया, प्लस एक H गायब हो गया ना, ये वाला H कहाँ गया? ये OH के साथ चला गया H2O बनाने के लिए, इसी से मेरा H2O बना। और अब क्या बच गया? Na, इसके पास पहले से Na है तो Na2SO4। दिस इज Na2SO4 में कोई हाइड्रोजन नहीं है अब, राइट। ये है नॉर्मल सॉल्ट। जिस सॉल्ट में थोड़ा हाइड्रोजन बचा हुआ होता है अभी, उसको बोलते हैं हम कौन सा सॉल्ट? एसिड सॉल्ट। समझ आ रही बात? तो दूसरी बात जो सीखने वाली ये है कि ये भाई ये एक स्टेप में नहीं हो जाता पूरा रिएक्शन। H2SO4 प्लस NaOH डायरेक्टली ये बनेगा नहीं, पहले वो एसिड सॉल्ट बनाएगा, फिर थोड़ा और रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फिर नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा। तो इन अ वे किसी सॉल्यूशन के अंदर एट अ टाइम दोनों तरह के सॉल्ट होंगे, कुछ एसिड सॉल्ट भी होगा और कुछ उसके अंदर नॉर्मल सॉल्ट भी होगा। इसलिए हमने बोला अ डायाबेसिक एसिड फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, एक एसिड सॉल्ट एंड दूसरा नॉर्मल सॉल्ट, राइट। सही बात है? चलो हो गया क्या? वंडरफुल। तो फिर आगे हम ट्रायाबेसिक एसिड के ऊपर, फोटो ले लिया सबने पिछला वाला? यस, फोटो ले लिया सबने? ओके, राइट। ट्रायाबेसिक एसिड, triabasic, when one molecule of an acid on complete ionization produces 3 hydronium ions in an aqueous solution, the acid is called the triabasic acid. Example, एक एसिड है बड़ा स्ट्रॉन्ग है ये, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब खुद दिखाई दे रहा है आपको कितने H3 हैं इसके पास? 3 है ना। तो ये 3 हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है, 3 हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करता है, प्लस एक फॉस्फेट आयन बनता है।
This is called the phosphate ion. So this is a triabasic acid. तो 3 हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करे ट्राया, जो 2 प्रोड्यूस करे डायाबेसिक, और जो एक ही प्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। सही है? तो राइट राइट नाउ, तो अभी तक जो हमने किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा आज? Students, we started this chapter. Let me close this first.